Welcome to one and all in the today's next session, that is the last session of our program, Value Added Certificate course, organized by the Department of Chemistry on the theme the chemistry in day-to-day life, under the aegis of Department of Higher Education Haryana, under the guideship of our principal sir, worthy principal sir, Major Dinesh Saharan. So first of all, I wish to give my sincere thanks to Department of Higher Education Haryana for giving us the opportunity to organize such type of programs. Now it gives me immense pleasure to welcome Dr. Ved Prakash Shoran sir, who joined us here today in this session as a resource person, as a guest to deliver an expert talk. Dr. Shoran sir completed his MSc Physics degree in 1980 with gold medal, that is the university topper, along with MA Journalism and PhD. Dr. Ved Prakash Shoran sir started his career in 1982 as a professor of physics for a 26 consecutive years, followed by administrative post as a principal initially at Government PG College Jeend, followed by this college, that is the Pandit NRS Government College Rohtak. Dr. Ved Prakash Shoran has a son and a daughter. दोनों के दोनों जो बच्चे हैं सर के वो वेल सेट हो चुके हैं अमेरिका के अंदर. Dr. Shoran is currently working on different social uplift programs with a self-pledge that I would like to do something for society before leaving the mother earth. सर की हमेशा ही ये इच्छा रहती है, कहीं पे प्रोग्राम्स के अंदर सर को बुलाया जाता है, अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर, तो यानी टाइम हमें लेना ही पड़ता है कि सर आज आप हमें समय दे दें. तो उसी बिजी शेड्यूल के अंदर से सर ने समय निकाला, हमारे बीच आए हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर कंटिन्यूसली सर अपनी रिटायरमेंट के बाद पार्टिसिपेट करते रहते हैं डिफरेंट सोशल अपलिफ्ट के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर. और सर ने यही सोचा है, अपने खुद के लिए, अपने आप के लिए एक शपथ बना ली है कि जब कभी मैं इस धरा को छोड़ के जाऊं तो मैं समाज के लिए, इस सृष्टि के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे यूथ के लिए कुछ अच्छा मैं करके जाऊं. Although he is a science student, he has a keen interest in literature, wrote 2 books, more than 400 articles and short stories have been published in various newspapers and the magazines. Several dramas and talks have been aired by the All India Radio. He has been honored with awards by the governor of 3 states. 3 स्टेट के गवर्नर के द्वारा सर को सुशोभित किया जा चुका है, अवार्डेड किया जा चुका है. मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी सर को मिल चुका है बाय द अमेरिकन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन नॉर्थ कैरोलिना USA. आउट ऑफ दीज मैनी अवार्ड्स, द बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड, भारत ज्योति अवार्ड, एजुकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड इसमें शामिल हैं, जो सर को सब समय के साथ साथ अलग अलग समय पे मिले हैं. Sir's maximum contribution is in the social sector, associated with almost more than 40 social organizations of the society, among them Jan Seva Sansthan, Free Public School, Hari Om Seva Dal, Manav Seva Sangh, MTFC, Jan Seva, Vardha Ashram, Mahila Ashram, Mata Dhanpati Devi Charitable Trust, वनवासी कल्याण आश्रम, ज्ञानो देवी ट्रस्ट, यूथ इंडिया एसोसिएशन, विक्टिम एनिमल सेंटर, अर्पण रेड क्रॉस, यानी और भी काफी लंबी लिस्ट है मेरे पास. तो मीन्स बहुत सारी सोसाइटीज हैं, सोशल अपलिफ्ट के जो प्रोग्राम हैं जहाँ पे सर हमेशा जुड़े रहते हैं. साथ के साथ सर को एकाग्रता के साथ, एकदम एक ध्वनि के साथ इलेक्टेड किया जा चुका है एज ए प्रेसिडेंट इन द रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ऑफ सेक्टर नंबर 14 रोहतक. ऑल्सो ही हैज विजिटेड चाइना, इंग्लैंड, भूटान, जर्मनी एज वेल एज द अमेरिका more than 5 times. Dr. Shoran is always devoted to the society. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, their great attachment to the culture, to the tradition, desire to do something for the youth. He is always engaged in many social service works. He has addressed students in school and colleges. सर की इच्छा रहती है, इसीलिए वो कभी मना नहीं करते. कोई स्कूल हो, उनके अंदर ये कभी नहीं होता कि ये मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, मैं प्रिंसिपल बना तो मैं सिर्फ कॉलेजेस के अंदर ऐसे वैसे प्रोग्राम में जाऊं, मैं ग्राउंड रूट जो लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर ना जाऊं. जैसे मैंने बताया सर सोशल अपलिफ्ट प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं, तो जो भी उनको आवाज़ देता है, पुकारता है कि सर आप यहाँ पे भी आए, तो ग्रास रूट गाँव से लेके
गली नुक्कड़ मोहल्ले से लेके जहां कहीं पे भी बुलाया जाता है, अपना योगदान देने के लिए सर हमेशा तत्पर रहते हैं। Close to 1,10,000 people are playing a very active role on the social media. He keeps motivating and encouraging the youth. There are 650 videos on the YouTube सर से related हैं ये इतने, and more than 1,000 videos on the Facebook and Instagram Sanskar Haryanvi culture. There are interesting videos on experience and the important issues which have views in lakhs, and one become so much viral that it has crossed the crores views, यानी करोड़ों में उसके views हैं. From time to time discussions are held through Facebook Live and the seminars. He always wished that our young men and the women should not face the problems, complications and the pains which we had to face in our childhood. क्योंकि सर ग्रामीण आंचल से ही पले बड़े आए हैं, उनको पता है ग्रामीण आंचल के बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी के अंदर. वो चाहते हैं कि जो समस्याएं हमने देखी जब हम बच्चे थे तब से आगे, तो वो समस्याएं हमारा यूथ फेस ना करें. तो इसलिए डिफरेंट अपलिफ्ट प्रोग्राम सर चलाते भी रहते हैं, खुद पार्टिसिपेट भी उनमें करते रहते हैं, और जब हम बुलाते हैं तो सर आते रहते हैं. He says that if even a single student understands a single thing, then his coming to our place would be successful. जैसे सर जब भी लेक्चर देते हैं उसके दौरान, जैसे आज भी होगा, अगर हम में जितने भी बैठे उनमें से एक बच्चा भी अगर वहां से कुछ सीख पाया, कुछ सीख लेके गया और सोसाइटी की अपलिफ्ट में उसने भी अपना योगदान देने के लिए शपथ ले ली, तो वो सर के लिए इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती. तो यही सर का उद्देश्य है. रिस्पेक्टेड सर हैज ए डिस्टिंक्ट रिकॉग्निशन on different social platform which attracts all to a large extent. That's why the many organization like ours organization keep inviting him to inspire and encourage students, teachers and the parents. He says that before leaving the world, जैसे मैंने आपको बताया, he will try to give a lot to the society. And now I feel proud to extend my hearty welcome, sir, on behalf of all the participants, our college fraternity, from our principal sir, from the Department of Higher Education also, because surely we are going to be benefited with your experience, with your expertise. The theme of the course is such that every branch is directly or indirectly related to our current theme. I would like to mention that our theme is one of the highest priority of the government of India and remains one of the key challenges to the whole society. Now I am sure that the inputs and the guidance given by you, sir, in this session will go along in enriching our efforts for making meaningful change in the life of the peoples. Thank you so much, sir, and welcome again for to be a part of the session by accepting our invitation on a very short call. Now I request Dr. Ved Prakash Shoran, sir, to enlighten us with your precious, valuable experience and knowledge. Please, sir, come on the dais. इतनी सारी देर लगा दी है ना बेटा. ये जो शॉर्टकट किया है, ये जो 52 नंबर कमरा है, इसमें मैंने 26 साल फिजिक्स पढ़ाई है. यहाँ 1974 में एडमिशन लिया था और आखिरी बार 2018 में यहाँ से विदा हुआ था. मुझे लगता है मेरे घर में मेरा समय कम बीता करता और यहाँ ज़्यादा बीता हुआ है. और यहाँ आकर मुझे फॉर्मल बातें करने में मज़ा तो वैसे कहीं भी नहीं आता, यहाँ बिल्कुल भी नहीं आएगा. इसलिए आप थोड़े से अपने मुंह बढ़िया बढ़िया से कर लो ताकि हम बात कर सकें. क्योंकि रविंदर सर जब बोल रहे थे तो ऐसे लग रहा था इन्होंने सब कुछ बता दिया, गोल्ड मेडल भी बता दिया, किताब भी बता दी, और कि वो भी कर रखा है, इसका जर्नलिज्म भी कर रखी, पर ताली बजा के नहीं दिया आपने. तो जब भी कोई बोलता है तो वी मस्ट रिकॉग्नाइज कि वो कह क्या रहा है. क्योंकि भाई, और ये जो हिंदी और अंग्रेजी वाला है ना, ये भी थोड़ा सा पंगा सा है. कितनी बड़ी अंग्रेजी हो पर हमें वो तसल्ली सी नहीं हो पाती जो हिंदी में होती है. मेरे को जो टॉपिक इन्होंने बताया कि सर केमिस्ट्री से ही रिलेट होना चाहिए, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिलेट केमिस्ट्री विद ह्यूमन वैल्यूज एंड विद हार्मोन्स एंड केमिकल्स. एक तो पहले ही ऑर्गेनिक बिल्कुल ही नहीं आती थी, है ना, और ऊपर से केमिस्ट्री में आके लेक्चर देना, इट इज़ ए टीडियस जॉब फॉर मी. पर फिर भी लेट अस गिव एन एग्जांपल. और आपको ये बताना इसमें कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ,
4 हार्मोन बड़े फेमस से हैं, आप साइंस के बच्चे हो, मेरे से तो अच्छी तरह ही जानते होगे। ऑक्सीटोन, डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। मैं एग्जांपल दूंगा, आप देखना। जैसे वो होता है ना, अभी सुबह सुबह हम क्या करते हैं, 4 लोग हैं, सारे सीनियर सिटीजन हैं, सुबह सुबह यूनिवर्सिटी में घूमते हैं, और एक दिन हमारे में से कहने लगा, यार जहाँ चाय पीते हैं ना, उसकी टेबल के ऊपर कितना बढ़िया पराठे का फोटो है, क्यों ना पराठा खाया जाए। पराठा खाने के लिए हम चले गए। उसने आके एक अचार का डिब्बा रख दिया, और उस अचार में नींबू भी था, आम भी था, मिर्च भी थी। और जब तक पराठा आया तब तक तो हमारा मुंह होता है ना खाने के लिए, बिल्कुल तैयार हो जाता है। मेरे से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, हम हार्मोन्स की बात थोड़ा रुक के करेंगे। मेरे से अक्सर सवाल पूछा जाता है, आपके मन में भी ये कभी आता होगा कि सर सच बताएं पढ़ने को जी करता नहीं है। बस कराते हैं, घर वाले करा देते हैं, कई बार टीचर्स करा देते हैं, कई बार इवन मेरे जैसे के साथ तो ये हालत थी भाई कि हर आदमी यही कहा करता, पढ़ लो। छोटे से मेरी बुआ अनपढ़ थी खुद, और जब भी 7-6 महीने में आती सिर्फ कुछ करके, बेटा पढ़ा कर। मैं सोचा करता यार ये क्यों मेरे पीछे पढ़ रहे। आप पहाड़े सुन लो, 10 तक की कही थी, हम 12 तक याद कराए फिर भी उनका मन नहीं भरा। 15 कही थी, हम 20 तक कराए फिर भी मन नहीं भरा। कितने तक कर सकता है? मैंने कहा भाई जिंदा हूं तब तक लगाए रहो। पेरेंट्स का भरता नहीं। विल यू बिलीव 65% में यूनिवर्सिटी में मेरे सबसे ज्यादा नंबर थे, और आज किसी के 85 आ रहे हो तो इस तरह से शर्माता है जैसे किसी ने कुकुरम कर दिया हो। 95 में नहीं बढ़ता, 97 में भी नहीं बढ़ता, कितने नंबर आ जाओ भाई। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ पढ़ना बहुत है। वैसे तो मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो एक ही एग्जाम्पल में खत्म कर सकते हैं इस बात को कि पढ़ना क्यों चाहिए। बता सकते हो गुड़िया क्यों पढ़ना चाहिए हमें? क्या फायदा पढ़ने का है? वो स्कूल वाले बच्चे कहते हैं जी मेरे पैसे मिलते हैं, बढ़िया बात है भाई, और क्या होता है पढ़ने से? हैं कि जी इतना भी नहीं पता आपको? पढ़ने से रिस्पेक्ट मिलता है भाई, नॉलेज बढ़ता है, जागृति आती है, बहुत सारी चीजें तो पढ़ने की ही हैं। पर हमारा मन जो है वो पढ़ने को बहुत कम करता है। खूब पढ़ लिया, MSc BSc सब कर आके बहुत कोशिश की, लेकिन नौकरी नहीं मिली, घर छोड़ के चला गया। माँ ने बहुत समझाया कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन पापा ने ये कह दिया, अरे तू 27 साल का हो गया, कभी तो चवन्नी कमा के ला, कब तक तू हमारे दम पे खाता रहेगा? और जब इस तरह की चीज किसी क्वालिफाइड बच्चे की छाती में लगती है तो इतना दर्द होता है, सोच नहीं सकते आप। लड़के ने घर छोड़ दिया ये कह के कि मैं इस घर में उस दिन घुसूंगा जिस दिन मैं खुद की कमाई करके लाऊंगा। चला गया। अब कमाई ऐसे ही थोड़ी हो जानी थी, 2 दिन अखबार बेचे, ये किया वो किया, 10 दिन में ये हालत हो गई कि घर भी याद आए और जा भी नहीं सकता। एक दिन लैंडलाइन फोन होते थे, फोन उठाया, मिला दिया, उधर से मम्मी ने फोन उठाया। मम्मी को पता था किसका फोन है और क्यों नहीं बोल रहा, फिर भी कहा कि बेटा तू इतना बुरा मान गया तेरे बाप का? अरे उसने गुस्से में कुछ कह दिया तो क्या हुआ? कहता नहीं नहीं गुस्से की बात नहीं, उसने ये कहा था कि तेरे से तो अच्छा ना पैदा होता तो अच्छा था, इतने पैसे लगा दिए हमने, इतनी मेहनत की, फिर भी तू कुछ नहीं बन सकता, कितने दिन इंतजार करें, मैं इस घर में नहीं आऊंगा। मम्मी ने समझाया बेटा ऐसा नहीं है, तेरे पापा बहुत दुखी हैं, तेरे बिना उनका मन नहीं लगता, सारा सारा दिन परेशान रहते हैं। ठीक है मम्मी मैं आ सकता हूं, अगर पापा ने मुझे माफ कर दिया होगा और वो वास्तव में मुझसे प्यार करते हैं तो उनसे कहना कल मैं भिवानी से दिल्ली जाऊंगा और आप अपने गांव के अंदर से जब ट्रेन गुजरेगी ना, अपनी टंकी दिखाई देती है स्टेशन से, वहां पर लाल कपड़ा टांग देना, अगर लाल कपड़ा टंगा होगा तो मैं उतर के घर आ जाऊंगा, और अगर लाल कपड़ा नहीं टंगा हुआ तो मैं समझ जाऊंगा पापा नाराज अभी भी हैं और मैं घर पे नहीं आऊंगा जब तक कि मेरी खुद की कमाई ना हो। ट्रेन आई और अगले दिन पापा कपड़ा नहीं, लाल कपड़े, दोनों कमीज और पजामा पहने लाल वहां खड़े थे। लड़का उतर कर आया और अपने पैर पापा के आके चिपट गया। आप जिस दिन कॉलेज में आए ना, अपने माँ और अपने बाप की आंखों में झांक कर आया करें, फिर देखना कैसा पढ़ने को जी नहीं करेगा। वो आपको क्या बनाना चाहते हैं, आपके लिए क्या करना चाहते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए बेटा जितना जोर लगाया जा सकता हो उतना लगा दो। ये 3 साल फिर दोबारा से नहीं आएंगे। हम वहां बैठे बैठे बात कर रहे थे, भाई तुम इतने मरे मरे व्यर्थाली तो बचा दो।
पेरेंट्स आपके बारे में जितना सोचते हैं ना, शायद टीचर के अलावा और कोई आपके बारे में इतना नहीं सोचता। इसलिए हमें इन 3 सालों में पूरा जोर लगाना चाहिए। नहीं, कुछ करड़े करड़े से बच्चे हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही समझदार करके डरा रखे हैं। इतनी देर में तो सारे कुल आ जाते हैं। पर चलो हम कुछ केमिस्ट्री की बात करेंगे। फिर तो ऑक्सीटोसिन, आपको एक रफ आइडिया सा मैं दूंगा, बहुत ज़्यादा सा डिटेल में नहीं ले जाने वाला। योर ब्रेन is having tiny cells and we name them neurons. They transmit your emotions and feeling to the body and different hormones are released. There are 4 types of popular hormones. हम इस तरह की बात करना चाहते हैं। हैप्पीनेस है, मोटिवेशन है, आपका ट्रस्ट है, अटैचमेंट है। इनसे हमारा क्या ताल्लुक है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग में और बाकी जितने जीव हैं उनमें यही फर्क है कि वी हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस और उन्हीं के बेस पर हम फैसले लेते हैं। द वेरी फर्स्ट हार्मोन विच इज नोन एज ऑक्सीटोसिन, दैट इज बेसिकली ए ट्रस्ट हार्मोन। उससे ट्रस्ट हमारा पैदा होता है एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड अटैचमेंट हार्मोन। एंड दिस हार्मोन व्हेन डिफरेंट पैटर्न्स इन द माइंड आर फॉर्म, देन हाउ टू इंक्रीज दिस हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को इंक्रीज कैसे किया जाए ताकि हमारी जो अटैचमेंट है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें क्या था, फादर का और सन का अटैचमेंट है। और जहाँ पर हमारी अटैचमेंट हो जाती है तो हमारी जो फीलिंग है, आप देखोगे कई बार, बल्कि मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आता है। जब हम छोटे बच्चे थे ना, बहुत छोटे थे, पहली बार स्कूल में आए, भागे भागे मम्मी के पास गए, पता मैडम ने क्या किया, देखो ये मेरे को स्टार दिया, मेरे को वो दिया, मेरे को ये दिया, आज मेरे को गुड मिला है। भागे भागे मम्मी चाहे कुछ कर रहे हो, पहले जाते हम बताते थे। फिर थोड़ा सा बड़े हो गए, तूने होमवर्क कर लिया, कर लूंगा, मेरे पीछे मत पड़ा कर। क्या हुआ, अटैचमेंट पलट गई। और थोड़ा सा बड़ा हुआ, बेटा बिना पढ़े कुछ नहीं, तू पढ़ाई किया कर, स्कूल में गया था। और जब कॉलेज में जाता है ना तो मम्मी कहती है तू मेरे को बता दिया, मैं सब समझती, तू क्या करता है। और कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि पेरेंट्स वो बात समझ जाते हैं जो आप बताना भी नहीं चाहते और आपको लगता है उनको पता भी नहीं हो, क्योंकि वो भी उसी दौर से गुजरे होते हैं। तो इस ऑक्सीटोसिन को हम अगर बढ़ाएं या हमारे पास ये ज़्यादा हो तो देन व्हाट ही राइट्स इज लॉयल्टी, ट्रस्ट, एम्पैथी, interpersonal bonding and security and lactation. When a child is born, then this hormone plays a very important role. और आजकल तो हम सिंथेटिक टॉक्सिटिन भी देने लग गए हैं, उससे हमें पेंज वगैरह इस तरह की व्हाट वी मीन इज कि ये हार्मोन हमारे को बहुत अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। छोटी सी बच्ची थी, आपने आमतौर पर देखा होगा, दूध पीना बड़ी भारी समस्या है आज के दिन। कोक दे दो, पिज्जा दे दो, खूब फटाफट खा जाते हैं। हस्बैंड अखबार पढ़ने लग रहा, मम्मी किचन में और गुड़िया को स्कूल जाना था, तो अंदर किचन से आवाज आई कि ये जो अखबार वाला नॉलेज है थोड़ी देर बाद में नहीं ले लो, इस गुड़िया को दूध पिला दो। ये गिलास रखे बैठी इतनी देर से। हस्बैंड है भाई, घर का सारा माहौल ठीक रखना ही पड़ता है, अखबार दूर रख दिया, बेटा दूध पी ले। कहती नहीं पीती। आप मेरी कोई बात मानते हो? कहती मानता हूं, बताओ क्या चाहिए? पक्का? हाँ। प्रॉमिस? पापा के हाथ पे, मैं कहूंगा वो करोगे? हाँ। ऐसे फिर तो मैं पी लूंगी। दूध भी पी लिया और पराठा भी खा लिया और खुश हो गई, स्कूल चली। याद रखना, आपने प्रॉमिस किया, जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा। गया भाई कॉलेज से प्रोफेसर। गुड़िया तो पहले स्कूल से आई, बैठी, पापा याद है? तो क्या याद है? सुबह प्रॉमिस किया था। हाँ बेटा याद है। चलो फिर, कहाँ चल रहे हैं? बार्बर के यहाँ। बार्बर के क्या करेगी? आप चलो। तो उंगली पकड़ के पापा के साथ साथ किस पे ले गई? नाई की दुकान। कहती है जाकर मेरे सारे बाल कटवा दो। अरे 7-8 साल की बच्चियां तो फूल वूल लगाती हैं, चोटी बनाना तू बाल। पापा आपने क्या कहा था कि जो मैं कहूंगी वो मानोगे? और उसने सारे के सारे बाल कटवा दिए। क्या बन गई? गंजी। गंजी होके आने लग रही। जो भी रास्ते में अंकल आंटी मिले वो उस गुड़िया की बजाय उस आदमी की तरफ देखिए, बेवकूफ है क्या ये? अपनी गुड़िया का ये हाल करवा दिया। घर जैसे ही घुसा, श्रीमती जी को जितनी तरह की गालियां देनी आती थी
सारी, अरे ये तो बच्ची है, आपका तो दिमाग ठीक था, क्या करवाना है ये? कहते भाई मैंने प्रोमिस किया था, मैं अपना प्रोमिस नहीं तोड़ सकता। शाम को 4 बजे घंटी बजी। गीतिका का घर यही है जी? हाँ जी आइए। हस्बैंड वाइफ दोनों अंदर आए। हाँ जी बोलिए, पानी वानी पिला। गीतिका आपकी बेटी है? हाँ। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। क्या मतलब? हमारी बेटी को, हमारी बेटी आपकी बेटी की क्लास में है, हमारी बेटी को ल्यूकेमिया है और उसके सारे बाल उड़ गए, सारा स्कूल उसे गंजी गंजी कहता था। आज जब आपकी बेटी बाल कटवा के गई तो किसी ने गंदी नहीं कहा। जिस छोटी सी गुड़िया में इतने संस्कार हैं कि वो अभी से ये समझती है कि इस गुड़िया के मन पर क्या बीतती होगी, आप जैसी बेटी भगवान सबको दे। इस सारी बात को क्या कहेंगे? एम्पैथी। सिंपैथी तो सुना है, एम्पैथी क्या होता है? समानुभूति। आप वैसा ही अनुभव करें जैसा अगला महसूस करता है। आपने टीएन सेशन की वो बात सुनी, कहीं मैंने पढ़ी थी, जाने लग रहे थे किसी होटल पे खाना खाने लगे तो देखा सामने इतने बढ़िया बढ़िया घोंसले लटक रहे। तो उसकी वाइफ ने इच्छा जाहिर की कि एक घोंसला कितना बढ़िया है, एक ये दिलवा दो, ये मंगवा दो। ने अपने सिक्योरिटी वाले को कहा कि अरे वो चरवाहे को बोल रहे घोंसला दे के मैडम को पसंद है। गया सिपाही, अरे भैया ये घोंसला तो क्यों, मैं तो तोड़ू? चरवाहा था 10 साल का बच्चा, 12 साल का। तो तेरे को 50 रुपये दे दूंगा। कहता तू चाहे 100 दे दे, मैं क्यों तोड़ू? तो क्यों, तेरे को क्या दिक्कत है? मैं चढ़ूंगा यार, ये पेड़ टहनी टूट जाएगी, तू छोटा बच्चा चढ़ जा। कहता तुझे पता है इस घोंसले में छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर मैंने ये घोंसला तेरे को तोड़ के दे दिया तो शाम को इसकी माँ को क्या बीतेगी, क्या सोचेगी वो आके मेरे बारे में? मैं नहीं तोड़ूंगा। यही बात जाकर टीएन सेशन को, टीएन सेशन जानते होगे ना, चुनाव आयुक्त हुए जिससे हर पॉलिटिशियन डरा करता। पहली बार ऐसा हुआ था देश में कि चुनाव आयुक्त भी कोई चीज होती, इतने फेमस थे वो उन दिनों। उन्होंने जाके उसको बताया कि सर वो तो बच्चा ऐसे ऐसे कह रहा है कि उसकी माँ पे क्या बीतेगी। टीएन सेशन ने अपनी जीवनी में लिखा, मैं इतना अनुभवी हूं, आईएएस हूं, पैसे हैं, रुतबा सब कुछ है, ये बात मेरे भेजे में क्यों नहीं आई? और उस छोटे से बच्चे में इतने संस्कार। काश हमारे देश के हर बच्चे में इतने संस्कार हों तो हमारा समाज कितना बढ़िया हो। तो जब हम दूसरे के उसमें कि जी इतना ही बढ़िया, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है तो इसके बढ़ने के तरीके हैं। हाँ हाँ हैं भाई। सबसे पहला तरीका लिख रखा उन्होंने कि प्रेज करना सीखो। क्यों जी, हमने ठेका दे रखा किसी का? प्रेज तो किसी की करते, याद करके देखो। आप मेरे से बताने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछो, आपने आखिरी बार अपनी मर्जी से खुश होकर किसी के सामने उसकी प्रशंसा कब की थी? रीना जी, एक लड़की छठी थी, हमने अपनी सहेली कि सुनीता की करूंगी, फिर जब फाइनल फैसला उड़ गया इसने करी मेरी करी। हम कभी भी प्रेज नहीं करते। मैं आज आपको एक तरीका बताकर जाऊंगा, कल ही एक्सपेरिमेंट करके देखना, और अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो रविंद्र सर को बताना कि सर सारा गलत बता गए थे। करोगे? और इतना गजब का एक्सपेरिमेंट है, मैंने पता नहीं कितनी जगह करके देखा, पर उसके लिए थोड़ा सा मेरे साथ खुलना पड़ेगा, जरा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। एक आध बच्चा तो बता ही सकता है। आपको 10-15 टीचर पढ़ाते होंगे, आपसे पहले पढ़ा चुके होंगे जो सेकेंड ईयर में, उनको और भी ज्यादा, फाइनल में तो बहुत ज्यादा पढ़ा। हु इज द बेस्ट टीचर ऑफ योर कॉलेज? सारे बढ़िया हैं जी, सभी तरह तो हम सीख ही गए हैं। किसी स्कूल में क्या होता है, 25 टीचर सामने बैठे होते हैं और सारे आके सारे आवाज लगाते हैं कृष्णा मैडम। आप सोच कर देखो उस टाइम कृष्णा मैडम को कैसी फीलिंग आती होगी। कोई आपकी कोई प्रशंसा कर दे थोड़ी सी तो फूल के हम कुप्पा हो जाते हैं। घर में अगर हम रूटीन में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, ये गुड़िया हमारी बहुत अच्छी है, बस गुड़िया तो उसी टाइम कुछ भी करवा लो उससे। हम 5 भाई बहन थे, पढ़ाई में सारे ठीक ठाक थे। मेरे फादर टीचर थे, मेरे सिर पर रख दिया
ये बहुत पढ़ाकू है। लो भाई, पढ़ाकू कहने के बाद तुम्हें लगा रहता, बाकियों का उम्र पूरा हो जाता, मैं रिवाइज भी क्या करता, और 8वीं 7वीं में फर्स्ट आ गए, फिर तो कहना है सारे गांव का ठेका ठा लिया। बोंद जाते थे कि भाई सबसे ज्यादा नंबर लेने, यहाँ पर आए ना भाई, अगर नंबर नहीं आए तो लोग कहेंगे गांव के बच्चे तो ऐसे बेकार से होते। तो व्हेन वी अप्रिशिएट समवन, बहुत अच्छी फीलिंग पैदा करता है। आप करके तो देखो किसी की, मैं नाम नहीं पूछना चाहता था आपसे, पर आपके कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। एक तो बहुत ही अच्छे हैं, बाकी थोड़े से कम अच्छे हैं, और एक सबसे कम अच्छे, है ना। हर जगह होते हैं, यहाँ भी होते होंगे। और बेटा जितना तुम्हें पता है ना, उससे तो कई गुना पता है इस कॉलेज के टीचर्स का। अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं तो एक को जानता हूँ, नहीं आ गए उनकी अलग बात है। एक्सपेरिमेंट बताओ सर, ये फालतू की बात ना करो। कल जब आपका पीरियड खत्म हो, मैडम निकल के बाहर जाए क्लास से, 15 फुट जा लेना, फिर जाना पीछे पीछे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैडम मेरे को आज तक ना 11 टीचर्स ने पढ़ा है, पर आप जितना गजब का नाउ कम टू द पॉइंट। 2 संभावनाएं हैं बेटा, 2 संभावनाएं हैं जो आपने सिलेक्शन किया है, या तो वो बेस्ट टीचर है और या तो नहीं है। बट इन बोथ द सिचुएशन यू विल बी गेनिंग, आपका फायदा होना ही होगा। अगर वो सबसे बेस्ट टीचर हुई तो तुरंत ये सोचेंगे, अरे मैं तो इन बच्चों को ऐसे ही लगाती। इन्हें ये भी पता है कि सारे कॉलेज की मैं बेस्ट टीचर हूँ, कितनी समझदार है ये लड़की, तो बड़ी होकर कुछ ना कुछ बन के दिखाएगी। और अगले दिन जब क्लास में मैडम आएगी ना, सबसे पहले किसकी तरफ देखेगी, कहाँ बैठी है ना। कितना अच्छा फील होगा उसे, और टीचर को और भी अच्छा पढ़ाने को मन करेगा। नाउ द अनदर सिचुएशन, मैडम को तो कुछ आता जाता था ही नहीं, और ना कुछ तैयार करके आ रही थी, ना कुछ पढ़ाया, और आपने क्या कह दिया, समझ गई मैडम? क्या नाम है बेटा? सुरभि। अच्छा, आप तो मुड़ के आ गए, पर मैडम के तो टेंशन वहीं से शुरू हुई। मैं तो इसको बावड़ी सी लगा रही थी। जया में इसने पता है कि मेरे को कुछ नहीं आता, तो बाकी सारी क्लास की सोचती होगी मेरे बारे में। मैडम को सारी रात नींद नहीं आएगी, और अगले दिन आते ही सबसे पहले इसको ढूंढेगी और यकीनन जैसा कल पढ़ा के गई थी ना, उससे बेटर पढ़ाएगी, और तीसरे दिन और भी जोर लगाएगी, जब तक सुरभि की आंखें ठीक नहीं हो जाती। क्या फायदा हुआ उनमें? मैं तो कई बार यहां तक कह देता हूं, अच्छे टीचर बेटा बने बनाए नहीं आते, आपको बनाने। आप क्वेश्चन पूछिए, उनका रेस्पेक्ट कीजिए, उन्हें सिर माथे बैठाइए। ये हो ही नहीं सकता कि वो आपसे प्यार ना करें, मेहनत ना करके आए और अच्छे टीचर ना बने। दिस इज अप टू यू। ठीक, अब बजा दो ताली बेशक। ये पहला तरीका मैंने बताया, प्रेज करके ऑक्सीटोसिन को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा एग्जांपल, आप किसी को मदद करना, मदद करोगे तो अगला तो खुश होगा ही होगा। आपको क्या होगा, सिर्फ बताने से बात नहीं बनती बेटा। मदद करना एक ऐसी चीज है, फीलिंग आती है, हार्मोन जब रिलीज होते हैं ना, यू विल फील दी हैप्पीनेस इनसाइड। मैं उदाहरण दिखाऊंगा आपको, देखना कितना बढ़िया आएगा। मेरे में एक ये कमी भी है बेटा, दूसरों के उदाहरण मेरे से नहीं दिए जाते, मैं तो अपने ही बताता हूँ, ताकि उसमें कोई हेराफेरी ना हो, और कोई चैलेंज करे तो बताया जा सकता भाई ऐसे ऐसे। 2013 में यहाँ से मैं प्रिंसिपल बन के जींद गया। सुबह 8:15 बजे का टाइम, हमारा सेक्टर बंद है, 14 सेक्टर आगे से बंद है, एक ही सड़क है मेन। एक बुजुर्ग सा आदमी, सफेद दाढ़ी, बुरी तरह से कपड़े सड़ रहे, वो कहीं फटा हुआ मुंह, गंदा बाल उलझे हुए, बुरी हालत। कोई भी दिखे उसकी तरफ ऐसे ऐसे करे, दिमागी तौर पे गड़बड़ थी। वो गेट तक आए, कोई केला वेला दे दे तो उसको खाए और फिर वापस चले। सारा दिन ऐसे घूमता रहे। 3 दिन 4 दिन हम शाम को यूनिवर्सिटी से सैर करके जाएं, रोज दिखे। नवंबर 18-19 की बात, रात को पड़े पड़े मेरे को ख्याल आया, यार ये बुजुर्ग आदमी, अब सर्दियां आएंगी, कैसे कैसे सड़क पर गुजारा होगा इसका।
कुछ करना चाहिए। सुबह सुबह मैं उठ गया 6 बजे ही, बाहर जाके देखा तो वो वैसे ही सड़क पे घूमने लग रहा। मैंने यहाँ जन सेवा संस्थान है भिवानी रोड पे, वहाँ जाना आना होता है। मैंने उनके स्वामी जी को फ़ोन किया, मैंने कहा स्वामी जी ऐसे ऐसे है और उस बुजुर्ग को अगर आप आश्रम में रख लो तो दिमागी तौर पे गड़बड़ है, वो बहुत बहुत परेशानी है, मुश्किल से बस समझता है और बोलता बोलता कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा जी इस टाइम तो चलो मैं वैन भेजूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखियो, आप जैसे हितकारी ना हमें फ़ोन तो कर देते हैं, पर जब हम वैन लेके जाते हैं ना वहाँ ना खुद मिलते ना वो आदमी मिलता, आप इसके साथ रहना। साथ रहूँगा जी, आप चिंता मत करो। मैं उसके साथ मेन रोड पे ही घर था, उसके साथ साथ इधर उधर होता रहा। मैंने सोचा यार जींद भी जाना है, 2 मिनट में नहा लेना। मैं अंदर गया और वो एकदम से पानी पूरी डाल के बाहर आया तो वाइफ भी कहने लगी ये इनका नहाना देख लो भाई, इतनी जल्दी नहाए, उन्हें क्या पता मेरा क्या प्लान था। मैंने बाहर आके देखा भाई वो बुजुर्ग दिखाई नहीं दिया। हे भगवान, स्वामी जी की वैन आ गई। हाँ जी मैं आपके घर के आगे खड़ा हूँ जी, मैं गलियों में घूम रहा। सेक्टर 14 में सिर्फ 8 गली हैं, मैंने गाड़ी ली, 8 के 8 में चक्कर लगा पर बुजुर्ग नहीं मिला। उधर से वो धमकी देने लग रहे, बुला तो लिया कोई है नहीं। करते करते मैं मेन गेट पे आया तो वहाँ पुलिस स्टेशन है। मैंने उनसे पूछा भाई यहाँ ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग था, हाँ हाँ जी वो तो कई दिन से चक्कर काट रहा है। मैंने कहा अब देखा कि नहीं, कि जी देखा नहीं यार, यहाँ से आगे नहीं गया, ये गारंटी है। इसका मतलब वो किस में है भाई, पागलों जैसी हालत हो गई। मैंने फ़ोन कर तो दिया पर ये लगा कि अच्छा भला कमाने गया था, इंसल्ट भी हुई और कोई मदद भी नहीं हुई। दुखी हो गया, टाइम हो गया। अब प्रिंसिपल कॉलेज में लेट जाए तो भाई मेरे हिसाब से किसी और को वो नहीं कह सकता टाइम पे आया करो, अब तो चलना ही पड़ेगा। मैंने गाड़ी निकाली, चलने लगा। जैसे ही निकला था, हमारे से 3 घर छोड़ के एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, उनका घर भी वहीं है। वो डॉक्टर साहब निकले, मैंने डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा थोड़ी सी हेल्प चाहिए आज तो आपकी। क्या मतलब? कि ऐसे ऐसे वो बुजुर्ग सा था और मैंने वो गाड़ी भी बुला रखी है, उसको ढूंढवाने में मदद करो, मैं तो अब रुक नहीं सकता और इसको इस वैन में बैठा। कहता वो, मैंने कहा हाँ। कहता मेरे हॉस्पिटल की पेड़ियों के नीचे पड़ा हो। तो हम गए भाई, वो पेड़ियों के नीचे से हमने खींच के निकाला, जबरदस्ती पकड़ के वैन खोल के कुंडी लगा के उसको भेज दिया। मैं अपने कॉलेज में चला गया। बात आई गई होगी। 3 महीने बाद वहाँ कैंप लगता है। मैं उस कैंप में गया तो मेरे को याद आया, अरे यहाँ एक बुजुर्ग भेजा था। मैंने स्वामी जी से पूछा उस दिन वो बुजुर्ग भेजा। कहता अच्छा अच्छा महेंद्र। मैंने कहा नाम तो मुझे नहीं पता। वो 17 नंबर बेड पे है आश्रम में। भाई 17 नंबर बेड पे मैं गया, महेंद्र की दाढ़ी बना रखी, साफ सुथरे कपड़े, और जैसे मैं उसके पास गया ना, मेरे से चिपट के कहता है मेरे भाई पवन के घर नहीं छोड़ा वो मेरे को। बेशक वो पागल था पर इतनी इमोशन उसमें भी थी। उस दिन मुझे लगा मेरे एक थॉट ने एक आदमी का जीवन बदल दिया। ये जो फीलिंग है ना, ये बताई नहीं जा सकती। जिस दिन आप फील करोगे तो आपको अंदर से लगेगा यार मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, किसी का तो मैंने कुछ किया, अपने लिए तो सब करते हैं भाई। इसलिए मुझे लगता है मदद जरूर करनी चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट 3 नंबर पे उन्होंने लिख रखा है, टू इंक्रीज दिस हार्मोन इन योर बॉडी वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट समवन। एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया प्रेज करने का, पर एक कॉम्प्लीमेंट इतना बढ़िया है कि उससे तो भाई मुझे सुन के इतना मजा आया। जींद गवर्नमेंट कॉलेज में गए, मैं गया था अगस्त में, यूथ फेस्टिवल इंटर यूनिवर्सिटी का हमने वहाँ ऑर्गेनाइज कर दिया। उसके 1 हफ्ते बाद ऐसे ही स्टूडेंट्स को फेस करने लग रहा था। मैंने ऐसे ही कह दिया बेटा परहेज किया करो। आगे आगे लड़कियाँ बैठी थी। बता सकते हो किसी ने कोई परहेज करी हो आज तक? आखिरी बार कब करी थी? जैसे आपको कह रहा था, एक लड़की ने हिम्मत सी करके कही हाँ जी मैंने की थी। बेटा खड़े हो, किसकी की थी सच्ची बताना? हाँ जी। किसकी की थी बेटा? गीता की। गीता है? हाँ जी। पीछे गीता बैठी थी। बेटा खड़ा हो बेटा, करी थी ये परहेज? हाँ जी करी थी। क्या परहेज करी थी भाई? तो कहने लगी मैं बताऊंगा जी गीता से पूछोगे? मैंने कहा भाई गीता से पूछूंगा, तू पता नहीं झूठ बोल दे। कहती हाँ जी करी थी। मैंने कहा क्या करी थी? न्यू की न्यू बता दे जी। मैं डर गया भाई। मैंने कहा न्यू की न्यू ऐसा क्यों बताओगी? मैंने कहा हाँ बेटा बता, ऐसे की ऐसी। कहती है जी आपको पता ही है पिछले हफ्ते अपने यहाँ यूथ फेस्टिवल हुआ था। मैंने कहा हाँ। कि जी हम डांस में थे और मेरा ना सेंट्रल पोजीशन थी डांस में। 11 लड़की थी, 5 इस तरफ 5 इस तरफ और मैं बीच में थी। सर 3.5 मिनट का डांस था, पोजीशन भी आई हमारी।
और जब वो डांस खत्म हुआ ना, मैं बुरी तरह से थक रही थी, मेरी ताली बजाई जी बढ़कर। और जब मैं नीचे गई ना तो मेरी सहेली के पास गई थी, जब करी थी जी इसने मेरी प्रेज। मैंने कहा क्या कहा था? जी न्यू क्यों नहीं बता दो। मैंने कहा भाई बता दे, अब न्यू क्यों नहीं बता दे। कहती है जी जब मैं वहां गई ना, इसने मेरी कोड़ी भर ली और नहीं बोली, गीता आज तक ना चाड़ा पाड़ दी। मैंने कहा बेटा उस टाइम तेरे को ये कैसी लगी? कहती जी उस टाइम मेरे को तो आज तक ये सबसे बेस्ट सहेली लगती है। अगर आप रोजाना एक बच्चे की, एक सहेली की, एक सर की, एक अंकल की, भतीजी, बुआ, चाची, कोई तो होगा भाई जिसकी आप प्रेज कर सको, जिसको कॉम्प्लीमेंट दे सको। अरे किसी को कपड़े अच्छे पहनने आते हैं, किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को चलना अच्छा आता है, किसी को तमीज ज्यादा है, कोई लिख अच्छा सकता है, कितनी तो चीजें हैं, कोई तो किसी में होगी। उसी चीज के लिए प्रेज कर दो। पर जब हम फैसला करते हैं ना तो आखिरी में इस बात को छोड़ देते हैं कि ये मेरा नहीं है। अरे इसको छोड़ो, तुम तो अच्छे हो। इसलिए आज से हम क्या करेंगे? प्रेज। एक आदमी की प्रेज रोज कर दिया करो, देखना 2 महीने में 60 आदमी ऐसे होंगे जो आपके गुण गाते फिरेंगे कि सुनीता जैसी लड़की तो है ही नहीं हमारे परिवार में। इसलिए हमें प्रेज करना चाहिए, क्योंकि ये लिखता है कि प्रेज करने से हमारे ये हार्मोन बढ़ते हैं। वैसे तो इसने बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, पर उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। ये तो लिखता है योगा से भी ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, और भाई म्यूजिक से भी, कुकिंग से भी, मेडिटेशन से भी। और एक और अजीब सी बात लिख रखी है, ये मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ। और कडलिंग, बाहों में किसी को ले लेते हो, मसाज है, हग है, पेट केयर है, इन सब चीजों से बढ़ता है। जिस चीज से आपको खुशी मिलती है उससे हार्मोन बढ़ता है। पर एक चीज इसने लिख रखी है, टेल समवन यू लव। आप जिसका आदर करते हो, माँ है, बाप है, चाचा है, जिसको आप चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है, उसको आपने, एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी, किसी दूसरे देश की थी, जो लोग डेथ बेड पे थे उनसे ये पूछा गया, भाई आप दुनिया छोड़ के जा रहे हो, आप अपने 3 पछतावे बता सकते हो? उन्होंने जो 3 पछतावे उन 500 लोगों ने बताए, यू विल बी सरप्राइज कि तीनों सब के लिए वो एक जैसे मिले। पहला पछतावा सबने लिख रखा, जितनी मेहनत मैं कर सकता था ना उतनी वास्तव में मैंने करी नहीं। आप अपने आप से मेहनत करके देखो, जितनी आप आजकल कर रहे हो पढ़ाई में मेहनत, क्या इससे ज्यादा नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो मरे थे, पछतावे लेके हमने क्यों बताने लग रहे हो? भाई मैं इसलिए बताने लग रहा हूं, आपका तो लंबा सफर पड़ा है, हम जान के भी क्या करेंगे? जीवन में जितनी मेहनत हम कर सकते थे उतनी की नहीं। दूसरा पछतावा, हमने कभी भी बड़े बड़े सपने नहीं देखे। काश बड़े सपने देखे होते, हम भी बड़े आदमी होता है सर। सपना भी मैं बताऊंगा, एक इतना बढ़िया सपना है कि यू विल बी सरप्राइज कि ये सपना तो भी ले सकते हैं। और तीसरी जो बात बताई उन्होंने ये कि जिसको हम चाहते थे, जो हमें प्यारे लगते थे, अच्छे लगते थे, उनको कभी ये बताया ही नहीं हमने कि हम आपको कितना चाहते हैं। काश हम ये बता सकते, चाहे वो अपने बच्चों से बता सकते, चाहे अपने फादर मदर से बता सकते। अब ये बताओ, सपने वाली बात बताऊं या लव यू वाली बात बताऊं? बता मेरा क्या जी कर रहा है, दोनों बता दो। पहले सपने वाली बताता हूं। जब मैं छोटा बच्चा था, 8वीं 10वीं में, बहुत सारा पढ़ा करता भाई, बहुत पागलों की हद तक पढ़ा करता। और जब बीएससी करके कॉलेज से घर गए तो मेरी दादी जी ये कहा करती कि इसको सोने दो, कई दिन से एग्जाम देने में सोया ही नहीं है। रोटी भी मैं तब खाया करता जब आँख खुला करती। और जब इतना ज़्यादा थका हुआ होता ना इंसान, तो मेरे साथ तो ये होता था भाई, जैसे मैं सोता तो एक सपना सा आता, ऐसे झटका सा मार के ना मैं उड़ जाया करता, ऊपर की तरफ उड़ जाता सपने में, और ऊपर उड़ के गाँव के ऊपर से घूमता, और फिर देखता खंबे कीकर ऊपर से कैसे दिखते हैं, फिर रोहतक घूम के जाता, और जब नीचे उतरता ना, कभी तो कीकरों में फंस जाता, कभी बिजली के तारों में, और आँख खुलती तो लगता बच गई। ये सपना मैंने कई साल तक देखा। बात आई गई होगी, नौकरी लग गई, बच्चे पढ़ गए, बेटा अमेरिका चला गया, गुड़िया कहने लगी पापा वैष्णो देवी चलो ना। चलो भाई, वाइफ मैं और बिटिया तीनों वैष्णो देवी गए। तो वहां कटरा में दीवार पे लिख रखा, हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध, 800 रुपये प्रति सवारी। भाई 50,000 रुपये तनख्वाह मिलने लगी थी उस टाइम। 800 रुपये क्या मायने रखते हैं? 2400 में फट कटवाई टिकट। और जब हेलीकॉप्टर में 5 आदमी बैठते, एक चला रहा था, 4 हम थे, 3 तो हम थे, एक और था कोई।
जैसे ही वो टू 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 ऐसे चला ना, यू विल नॉट बिलीव, मुझे वही सपना पूरा होता दिखाई दिया जो मैं सारी उम्र 8वीं 10वीं से लेता। और जब घर आए ना, जब घर आए तो बेटे ने टिकट भेज रखी कि पापा आपकी रिटर्न टिकट भेज रहा हूँ, अमेरिका आ जाओ। भाई 15 घंटे तक मैंने वो ही स्वाद लिया जो हेलीकॉप्टर में 4-5 मिनट आ गए। दिस इज हाउ ड्रीम कैन कम ट्रू। हमें भी बता दो जी कोई ऐसा सपना, ऐसा सपना बता सकता हूं मैं आपको जिसको लोगे तो कल ही रिजल्ट आएगा। मेरा तो बड़े साल बाद आया। आपको जो मैं सपना लेने की एक्सरसाइज बताऊंगा उसको कल ही लेकर देखना। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बताया है और बहुत सारे लोग कहते भी हाँ जी हुआ। बताऊं? उसी तरह करके देखोगे ना। बस स्टैंड से लेकिराम गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचने में ऑटो में बैठ के आते हो। ऑटो में बैठते ही जैसे ही ऑटो में बैठो पीछे कमर लगा लेना, आंखों को थोड़ा थोड़ा बंद कर लेना और सपना लेना, आई एम द डिप्टी कमिश्नर ऑफ रोहतक। सपना ही लेना है, किसी और को तो पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। आई एम द डिप्टी कमिश्नर ऑफ रोहतक। और शीला टाकीज पे आके जब पुलिस वाला सारे ट्रैफिक को रोक रहा हो तो आप क्या सोचना, ये किसके लिए रोक रखा है? मेरे लिए। और ये आगे जो ढूंढ कर रहा है ये कौन है? मेरा ड्राइवर। मैं पिछली सीट पर बैठा, बिकॉज आई एम द डिप्टी कमिश्नर ऑफ रोहतक। आगे से कोई सलूट मारेगा पुलिसमैन तो किसको सलूट दिया जा रहा है? मेरे आई एम द। और जब ऑटो लेकिराम के गेट पे आ जाए ना वो कहता बाबूजी, तो अपने पैसे निकाल के उसको पकड़ा देना, सपने में से उल्टे आके अपना बैग उठा के अंदर। जैसे ही गेट में घुसोगे आपके दिमाग में पहला प्रश्न ये आएगा, यार ये डीसी बनते कैसे हैं? ये आईएएस होता क्या है? क्या इस कॉलेज की लाइब्रेरी में भी ऐसा कुछ है जिसको पढ़ के मैं आईएएस बन जाऊं? यहाँ के भी तो बच्चे आईएएस बने होंगे, वो बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? और जब मैं बन गई ना तो गीता तो जड़ क्यों मर जाएगी और रोहतक में डीसी लागी। ये थॉट आपके दिमाग में चलेंगे और जब आप लाइब्रेरी में जाओगे और लोग पढ़ते दिखाई देंगे ना, आपको लगेगा यार ये पढ़ रहे हैं, कभी ये बन जाओ और मैं रह जाऊं। और जब फंक्शन पे कोई डिप्टी कमिश्नर आपका चीफ गेस्ट बन के आया होगा ना, आप वहां बैठे बैठे देखो इसमें ऐसा किए है जो मेरे में नहीं है। इसी कॉलेज में 2017 में जो लड़की आईएएस क्वालिफाई कर गई थी उसका जीजा मेरा स्टूडेंट था। मैंने उस लड़की को बुलाया और नई बिल्डिंग का उद्घाटन था। 2200 लड़कियां वहां बैठ के उसने दिखाया और उसने बताया किस तरह से तैयारी करनी होती है। और वो लड़की 5 फुट 1.5 इंच की उसकी हाइट है। आज मेरे डिस्ट्रिक्ट की वो डिप्टी कमिश्नर है दादरी की। जब इतने ऐसे बच्चे कर मैं चंडीगढ़ मीटिंग में जाया करता, जैसे आपके सर गए हुए होते हैं, कभी भी वहां बैठ के मैं ये नहीं सोचा करता कि मेरे कॉलेज का कभी ये पूछ लेना, वो सारी चीज तो फाइल भूल लेके जा ही रहे थे। मैं हमेशा बैठ के ये सोचा करता ये जो कमिश्नर बैठा है ना, इसमें ऐसी कौन सी चीज है मेरे में नहीं है। एंड आई फाउंड मेनी टाइम्स इतने सारे संस्कार हमारे में भरे, वो बता देवी कौन है? वो तो एक एग्जाम पास करके उसी हथियार है। क्या कहना चाहता हूं मैं, जिस बच्चे में संस्कार हैं, जो मेहनत की आदत डालता है, जिसका दृढ़ निश्चय है, जो सपने लेना जानता है, नो वन कैन स्टॉप हिम टू गेट सक्सेस। एक और हार्मोन बताते हैं भाई केमिस्ट्री वाले, बायो वाले, विच इज कॉल्ड मोटिवेशन या मोटिवेशनल हार्मोन, एंड द नेम इज डोपामिन। कहते हैं ये जो हार्मोन है इससे आपकी अलर्टनेस, फोकस, क्रिएटिविटी, मेमोरी, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। और ये कब बढ़ती हैं? यानी ये वाला जो हार्मोन है डोपामाइन, ये कैसे क्रिएट होता है? ये क्रिएट होता है भाई किसी ऐसी चीज से विच गिव यू मोटिवेशन। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा रिवार्ड, कोई भी ऐसी शाबाशी जिसके मिलने से आप खुश हो जाते हो, उससे हमारे ये डोपामाइन का हार्मोन है, ये रिलीज होता है। उदाहरण दूं, आप किस चीज से मोटिवेट होते हो? मोटिवेशन का सोर्स होता है ना हर एक का। मैं बताऊं किस चीज से मोटिवेशन होता हूं? अभी आपके सर बता रहे थे मैंने 400 लघु कथाएं अखबारों में लिख दी, वो 2 किताबें छाप दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मुझे मोटिवेशन कहां से मिले? और मैं जो मोटिवेशन बताऊंगा ना, मैं कहता हूं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मैं 6 महीने तो जरूर याद रहेगी आपको। 1982 की बात है, जाट कॉलेज में पहली बार मैं फिजिक्स का लेक्चरर लगा। 12-13 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, 2 फिजिक्स में थे, 3 केमिस्ट्री में, इसमें उसमें बड़े सारे सब्जेक्ट में 12-13 लोगों का
सिलेक्शन हुआ। अगले दिन हमने ज्वाइन किया, स्टाफ रूम में बैठे, लड़कियां भी थी उसमें, लड़के भी थे। 1982 में मैं कई साल का था, 60 की मेरी पैदाइश है, 22 साल का था, ऐसा नहीं था ये यंग। सामने एक नई प्रोफेसर आई सेलेक्ट होके, इतने तो सारे वो जूड़े, क्या बोलते हैं, नई नई चूड़ियां होती हैं, वो आई, और उनकी चप्पल देखो झिलमिला रही, नेल पॉलिश, नाखूनों पे लिपस्टिक, पूरा ऐसा सच जैसे शादी में से सीधी उठ के यहीं आई हो। मेरे साथ जो बैठा था, मैंने उससे कहा कि यार देखिए, अपने आप को ये प्रोफेसर कहते हैं, तो ये क्लास में जाएगी तो क्या बच्चे क्या सोचेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको देख, है कौन ये? पता क्या बोला भाई साहब? मिसिज है। से लेके और 1986 तक 3.5 साल तक मैं जाट कॉलेज में रहा। उस कपन को मैंने कभी बेकार वाले कपड़ों में पहने नहीं देखा। मोटिवेशन बता रहे थे जी, मैंने ये सारी बात लिख के 1982 में दैनिक ट्रिब्यून अखबार छपा करता सारे हरियाणा में, मैंने वहां चंडीगढ़ भेज दी। भूल गया, ऐसे ही लिखने का शौक था, लिख दिया, वहां भेज दिया भाई। 6-7 महीने बाद एक प्रोफेसर आता है मेरे पास, केमिस्ट्री के मलिक होते थे, कहते वेद प्रकाश तू लेखक कब तक पाक गया? मैं क्या मतलब कि तेरी लघु कथा छप रही है दैनिक ट्रिब्यून में? मैंने तो भाई पीढ़ की तो टाड़ कर दी और बाजा गया अखबार खरीद के लिया, उसमें नाम लिख रखा वेद प्रकाश शौरान। 1982 में बेटे 2 ही अखबार थे, एक हिंदुस्तान था, एक दैनिक ट्रिब्यून था, सारे हरियाणा में वो ही छपाया करता। दैट गिव मी मच मोटिवेशन। उस दिन मुझे लगा कि मैं कुछ, सारे गेट में देख रहे हैं ना, दैट गिव मी मोटिवेशन टू राइट। और उस दिन के बाद भाई मैं कुछ ना कुछ लिखता ही रहा। और आज हमारी हालत ये है क्योंकि पढ़ने वाले कम हो गए हैं, इसलिए मैंने लिखने की बजाय छोटी छोटी वीडियो क्लिप बनानी शुरू कर दी। और उस क्लिप में भी यही हाल हुआ, किसी ने मेरे पास फोन किया कि ये आपकी एक क्लिप है जी, वो पता नहीं व्हाट्सएप पे स्टेटस कहाँ कहाँ घूम रही है, 5-6 लाख होगी। मैंने देखा जब तो 55 लाख मिले, और तीसरे दिन वो 60 लाख 70 लाख, में 1 करोड़ तक तो मैंने देखी है, पता नहीं क्या है। और वो क्लिप क्या है वो मैं आपको अगर सुनाऊंगा तो यू विल बी सरप्राइज, जिसमें तरह कुछ था ही नहीं। बताऊं? गर्मियों के दिन थे, मैं जाने लग रहा था घर, पसीनों में तर पतर, पैदल ही चल रहा था। एक पेड़ था, उसके नीचे जाके खड़ा हो गया, गर्मी पूरी हालत थी, ऐसे ऐसे करा। सामने खिड़की खुली, उन खिड़की खोल के उसने कहा पानी पियोगे? अरे मैं तो तेरा मरू ही था। मैंने कहा हाँ। मैं सोचने लगा यार कितना कमाल का आदमी है, आज के जमाने में ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं। विषय कैसे पता लगा? मेरे को प्यास लगी हुई है, इतना बढ़िया आदमी हो सकता है कोई? मैं ये सोच ही रहा था, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मैंने सोचा यार बेवकूफ आदमी है ना, तो पानी लेता, इतनी देर में तो घर पहुंच जाता। मैं जब ना ये पिलाना था तो क्यों मेरे से क्यों करा? अंदर ही अंदर मैं गाली तो क्या दूं था, लेकिन फिर भी एक मंथन दूसरी तरह का चल रहा था। इतनी देर में उसका गेट खुला, मैंने सोचा यार मैं तो गलत सोच रहा था। देख ले तो आके कहता है भाई साहब, मैंने सोचा इतनी गर्मी है, पानी तो केले जाएगा, शिकंजी बनाने लग गया था। मैंने सोचा यार देख मैं कितना गलत सोच रहा था, ये तो बेचारा तेरे लिए शिकंजी बनाना था, और मैं ये सोच रहा था कि वैसे ही रोक दिया। गिलास में डाली शिकंजी, मैंने मुंह पे लगाई तो उसमें मीठा था ही नहीं। मैंने सोचा यार क्या करता है, नहीं पक रहा है, जब चीनी तक बड़ा बेकार आदमी है। मैं सोच ही रहा था, उसने जेब में से पुड़िया निकाली। भाई साहब मैंने सोचा कहते शुगर सागर हो कितनी डाल लूं। हम किसी भी आदमी के बारे में इतने जल्दी जल्दी फैसला लेते हैं कि अगले को टाइम ही नहीं देते। अरे फैसला तो लेने दो, फिर बताना है आदमी अच्छा है बुरा। 1 मिनट 55 सेकंड की वीडियो बेटा 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने देखी। मैंने भी वो काम शुरू कर दिया। अब फेसबुक पे मेरे घर में 88,000 तो उस पर हैं, 1000-2000 इंस्टा पे हैं, यूट्यूब पे भी 10,000 तो होंगे। ये वीडियो कॉलेज में 4 दिन पहले डाली थी, भी 2,500 तो हो लिए होंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, विच वट मोटिवेट्स यू। हर आदमी की मोटिवेशन कहीं ना कहीं से मिलती है, उस मोटिवेशन को जारी रखिए। अगर वो खत्म होगी ना तो फिर आप, अक्सर आपने सुना कुछ ना जी पुराने का, मेरी वाइफ स्कूल में टीचर थी, उन्हीं के स्कूल में छोड़ने गया था, खेड़ी साथ है ना नज़दीक से, छोड़ने जाता था। एक दिन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कोई क्लिप देख ली, कहती थी हमारे बच्चों को मोटिवेट करो।
कर देते हैं जी, प्रेयर में बुला लिया, मैंने भाषण दिया, बाल करता है तुड़ी बुझाई, मेरी श्रीमती जी भी मोटिवेट होगी, अगले दिन कहती है मैं भी दूंगी भाषण, बेटा पढ़ा करो, छोरी खड़ी होगी, हाथ उठा लिया, मैडम कोई फायदा ना है। क्यों बेटा? कहती है जी मेरी भाभी है ना, MA पास है और मैं 9वीं में हूं, तड़के दोनों एक का भैंस का गोबर गिरा करा। दिमाग हिल रहा है। जब हमारी सोच बेकार हो जाती है ना, हर चीज हमें उल्टी दिखाई देगी, पढ़ना भी बेकार लगता है ना जी, ऐसे सिलेक्शन थोड़ा होते हैं, नरी से पार चलना है जी, फलाना पैसा, ये सब फालतू की बातें हैं। 100 में से 10%, 1%, 1.5% कोई उल्ट हो भी गया है, बाकी 99-98% बच रहे, उनमें करो ना कम्पीट। इसलिए मुझे लगता है मोटिवेशन आज के दिन भाई बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और ये कहता क्या है, इसको अगर इंक्रीज करना है डोपामिन को, तो ये कहता है आपको प्रोटीन खाने चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना चाहिए, प्रोबायोटिक्स खाने चाहिए, बीन्स खाने चाहिए, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्लीप, लाफ, म्यूजिक, सनलाइट, ये तो होना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता ये चीज़ मेरे बताने की है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो, यू कैन गूगल, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन द नेट, वहाँ से ढूंढो, पर अपना डिसीजन तो हमें खुद ही लेना पड़ेगा। रविंदर जी टाइम हो जाए तो बताना भाई मेरे को। नाउ द नेक्स्ट इज सेरोटोनिन, ये भी कोई हार्मोन है विच इज नोन एज लीडरशिप हार्मोन। लीडर, कोई लीडर कब बनता है? अपने देश में तो नए लीडर बन रहे हैं ना। और देखो कितना गजब का सिस्टम है, आपने अगर ध्यान ना किया हो तो मैं ध्यान दिलवाता हूं आपको कि लीडर कैसे बनते हैं। अभी हम वहां बैठे बैठे बात कर रहे थे कि 40-50 साल से हम देख रहे हैं घर में जो भी बच्चा थोड़ा सा पढ़ ले लो कहेंगे इसमें साइंस दिलवाओगे, सबसे इंटेलिजेंट क्या करते हैं उसको? साइंस। नॉन मेडिकल लेगा तो मेडिकल, डॉक्टर बनेगा या सबसे इंटेलिजेंट को हम क्या बना देते हैं? डॉक्टर बना देते। थोड़े से कम इंटेलिजेंट है, साइंस तो होना चाह रही, तो बेटा तो कॉमर्स या साइंस आर्ट्स ले ले, वह डॉक्टर इंजीनियर जाके लग गए नौकरी। जो भाई साहब साइंस नहीं चला सका था ना, उसने आर्ट्स ले ली, एक का सब्जेक्ट आवा था, उस समय इतनी मेहनत करेगी का ये बन गया।